डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Welcome to KK Talks, a podcast to make your life better. Every week, Kanchan Kua Army talks about career development, life goals, mental health, and relationship. Hello, friends, and welcome back to KK Talks. I want to thank you all for listening to my show and for the love and appreciation I got from my last episode. I request you all, please follow me on Apple Podcasts, Spotify, and SoundCloud. And today I have a very talented guest from Mumbai who is working in film and TV industry for more than 20 years. A Miranda House graduate who started her journey in Delhi, but to chase her dream she moved to Mumbai. Her journey started in the world of cinema by being awarded the newcomer original script idea at the famed Ocean Film Festival, and the resultant a chance to assist French director Pascal Diaz, a second AD, on an Indo-French collaborative project titled Wanderer. This was the start, and from there was no turning back. She worked with Star Plus as a senior producer on a very massive hit shows like Gulmohar Grant, Saraswati Chandra, where she worked parallelly with Sanjay Leela Bansali, and then she was promoted to project head for a very prestigious and hit show Siya Ke Ram. Today, she resides in Mumbai and her work continues as a scriptwriter. Like every one of us, her journey too has not been a bed of roses. It has its own set of highs and lows. Shweta, welcome to KK Talks. And first question I would like to ask you is, how's your life in lockdown? Hi Kanchan, thank you for having me on the show, and I must congratulate you for starting such a nice endeavor. As far as lockdown is considered, I would say that for me personally, it did not affect me much क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और मुझे अकेले रह के अपना काम करना पसंद होता है। एक लिमिटेड स्पेस में काम करने की आदत होती है। बाहर लोगों से मिलने जुलने की आदत बहुत नहीं होती है, तो इसलिए मुझे उतनी खास दिक्कत तो नहीं महसूस हुई, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, मैंने देखा है और मैं ऐसे लोगों के बीच घिरी भी हूँ जिनके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल हुआ, एंड दे फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू मेक इट to stay back at home and get used to this idea itself. और हाँ, लेकिन अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि शुरू-शुरू में मुझे भी थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील हुआ बिकॉज़ एक होता है कि आप अपनी इच्छा से रहते हैं और एक होता है कि आपको ज़बरदस्ती बाँध के रखा गया। तो ये कुछ वैसी फीलिंग सी थी शुरू में, थोड़ा कैप्टिव टाइप की फीलिंग थी। 1 हफ्ते थोड़ा-सा मुझे भी यूज़्ड टू होने में टाइम लगा। मुझे घर के भी काम करने थे, सबके साथ हाथ भी बटाना। वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल रहा, 1 हफ्ते का रहा, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद फिर मैं उस चीज़ से उबर गई और देन इट वाज़ फाइन विथ मी। बट आई डू नो कि यहाँ पे और बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ रिलेटिवली वेल टू डू फैमिली, तो मेरे लिए और भी बहुत सारे जो कंसर्न्स थे, वो नहीं थे कि मुझे सामान बाहर से लाना है क्योंकि कोई बाहर जाने के लिए था मेरे। मैं अकेली नहीं थी, मैं फैमिली से सराउंडेड थी, तो इसलिए मुझे वो भी एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट था घर में। एक वक़्त मिल रहा था मुझे अपने फैमिली के साथ बिताने का भी, जो शुरू में फ़ोर्सफुल लग रहा था, लेकिन बाद में ग्रेजुअली आई एक्चुअली स्टार्टेड काउंटिंग इट एज़ अ ब्लेसिंग कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, तो मुझे यूजुअली अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का ना मौका मिलता है, ना समय मिल पाता है और मेरे पास ये दोनों ही यहाँ पे अभी मौजूद थे। तो
मेरे लिए तो पर्सनली अगर कहूँ तो मेरे लिए सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत स्ट्रांग है। दिस इज ऑल आई कैन से कि यस, ग्रैटिट्यूड इज व्हाट आई हैव एक्चुअली। दिस इज व्हाट लॉकडाउन हैज brought me to have the sense of gratitude for everything and anything in life. So it's a kind of a blessing in disguise for you, as a for you or to many writer or inspiring writers. Yeah, you can say that. Yes, it is obviously a blessing in disguise. Truly, truly. ग्रेट। आई थिंक आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट शेयर करे हमारे साथ। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी, बिकॉज टिल नाउ वी आर टॉकिंग टू पीपल, सब लोग ने यही बोला कि इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम अ इंडस्ट्री जहाँ पे लोग they are very used to go to office daily and follow routine. But then yes, it's a very different shade of what's going all around. One thing I like to bring in here, Shweta, in my first two episode, so मैंने और हमारी जो लास्ट गेस्ट थी डॉक्टर कविता नेगी, हम दोनों ने एक बात पे काफ़ी जोर डाला था और वो थी मेंटल हेल्थ. दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लास्ट वीक वी हर्ड अ वेरी सैड न्यूज़ दैट अ young, very talented, a very deserving actor committed suicide. As per the reports, it's directly or indirectly relates to his mental health. So, as an outsider to TV और फिल्म इंडस्ट्री, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुंबई में अपना करियर बनाने में किस तरह के चैलेंजेस का एक एक्टर हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर को क्या मतलब किस तरीके के चैलेंज का सामना करना पड़ता है. और श्वेता, यू आर इन द इंडस्ट्री, आप मीन्स 20 साल से इंडस्ट्री में हैं. आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रगल इज लाइक इन दिस इंडस्ट्री. सी जैसा कि आपने कहा कि मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और बहुत से उतार चढ़ाव भी मैंने देखा, और मैं भी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ. सिर्फ फिल्मों में मेरी रुचि थी और उसी तरीके से मैंने अपने सपनों के सहारे मुंबई में कदम रखा. लेकिन और ऐसे बहुत से लोग रखते हैं हर दिन. लेकिन इसका स्ट्रगल मैं कहूँगी किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हाइप ज़्यादा है. ओके. हाइप ज़्यादा है क्योंकि इससे रिलेटेड जो नाम है और जो फेम है वो शायद सबको बहुत ल्योर करता है और सब लोग उसी के पीछे भागते हैं. राइट. और चूंकि सबको, और ये एक सपनों को बेचता है, ये फिल्म इंडस्ट्री सपनों का सौदागर कहा जाता है, तो इसलिए शायद हम इसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करके देखते हैं और स्ट्रगल भी इसीलिए शायद ग्लोरीफाइड ज़्यादा है. राइट. क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो शायद ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत है. वो सिर्फ ये देख के आ जाते हैं कि अरे देखो पर्दे पे दिख रहा है, लोग कितनी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की छिपी मेहनत से वो अनजान होते हैं. और जब उनका उस मेहनत से पाला पड़ता है तो बहुतों की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री किसी डिसिप्लिन के तहत काम नहीं करता है. अगर आप में पैशन है तो Right. ही आप सरवाइव कर पा Right. सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम स्ट्रेन नहीं होता है कि आप 9 to 5 काम किए और उसके बाद आप आराम कर रहे हैं. जब काम होता है तो शायद आप 3-3 दिन 4-4 दिन तक नहीं सोते हैं, और जब काम नहीं होता है तो हो सकता है महीनों तक आप ऐसे ही बैठे हुए हैं. तो वो दोनों ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं. जो मेंटल प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है और उसको सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर सबको लगता है कि शायद इससे बेहतर तो वही था कि हम एक रेगुलर जॉब कर लेते. तो बहुत लोग इस चक्कर में हिम्मत हार जाते हैं. दूसरी बात होती है कि एक मौका मिलना. मैं इसको 3 फेजेस में अगर कहूँ कि डिवाइड करूँ स्ट्रगल को, तो पहला होता है कि आपको पहला मौका कब मिले. जैसे कि बाकी जगह होता है, शायद यहाँ पे तरीका अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका मिलता नहीं है. हर एक आदमी को एक मौका ज़रूर मिलता है. अब आप उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, बहुत कुछ आपके टैलेंट और उस वक्त आपकी क्या स्थिति है, मनोस्थिति है, उस पे डिपेंड करता है. हाँ, ये बात अलग है कि दूसरा मौका यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है. तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाला यहाँ पे बहुत फॉलो किया जाता है, और फिर उसके बाद शायद इसीलिए आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि कोई बताने वाला Right. नहीं होता है. लेकिन मैं ये नहीं Right. कहूँगी कि मौका नहीं मिलता है. बाकी जगह शायद चूंकि आपके पास एक नौकरी होती है तो आप लगातार उस पर कुछ गलतियाँ करते हैं, आपको माफ़ कर दिया जाता है या दूसरा मौका मिल जाता है. यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता. दूसरी बात ये होती है कि जब आपको मान लीजिए किसी न तरीके से अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं
और अगर आप में टैलेंट है तो शायद आपको दूसरा मौका मिल भी जाता है। मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि, और लेकिन वो हर इंडस्ट्री में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ बहुत ग्लोरीफाइड है, और बहुत से लोग जिनमें वो स्किल्स नहीं होते हैं, वो भी मानते हैं कि मैं, मेरे Mm-hmm. अंदर तो स्किल है, सामने वाला बेकार है, सामने वाला मुझे नहीं समझ Right. पाया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार आदमी के अंदर भ्रांति होता है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी को लगता है कि वो इससे बेहतर लिख सकता है, वो इससे बेहतर एक्ट कर सकता है, लेकिन जब एक्चुअल मौका आता है तो शायद वो नर्वस हो जाता है या उसके शब्द नहीं निकलते। ये बात कोई मानना नहीं चाहता खुद से। शायद वो कारण कोई भी हो सकता है, वो अपनी हार मानते हो या उनका ईगो इतना बड़ा होता हो, बहुत से कारण होते हैं। लेकिन फिर दूसरा मौका जब मिलता है, तब तक आपको आप इतने ठोकर खा चुके होते हैं और इतनी जगह रिजेक्शन मिल चुका होता है कि शायद आप निखार आ जाता है। वो रिजेक्शन को हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चूंकि आपने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया, तो मैं उनकी ही फिल्म धोनी का एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जहाँ पे धोनी का सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी सभी चिंतित होते हैं, बाकी सभी उसके लिए कहते हैं कि तुम्हें मिलना चाहिए था, उसने गलत किया, ये किया। लेकिन उसने खुद कहा कि एज अ कैरेक्टर उसने कहा था कि मैं शायद उस लायक नहीं था, मुझे अपनी कमियों के बारे में ज़्यादा महसूस हुआ और मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर कोशिश करने के लिए आए हैं, तो फिर ये तो सोचना चाहिए और इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। और चूंकि इस इंडस्ट्री में स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसलिए वो 30 सेकंड का ही टाइम मिलता है आपको अपना सारा कुछ प्रूव करने के लिए। और मेरे ख्याल से ये हर इंडस्ट्री में होता है। बस यहाँ पे फेम ज़्यादा है तो इसलिए हर चीज़ ग्लोरीफाइड ज़्यादा है, और सब कुछ ऊपरी चमक दमक के हिसाब से जाता है, क्योंकि फिल्में भी ऐसी बनती हैं कि एक मौका मिला, उसके बाद लाखों लाख कमाने लगे और रातों रात लोग पहचानने भी लगे। बस यही एक वो है जो मुश्किल पैदा करती है। और चूंकि मेंटल हेल्थ की बात आपने की, तो मैं यही कहूँगी कि मेंटल हेल्थ तो वो मतलब एक ट्रैजिक एंड से हम उसके बारे में उसको एक्नॉलेज करने लगे, जो सैड है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को कभी भी जो मेंशन जिस तरीके से किया जाना चाहिए था वो नहीं करते थे। हम उसको मजाक बना के रख दिया था कि वो पागल है, अगर वो कोई मेंटल इश्यू से गुजर रहा है तो हम उसे पागल करार देते थे, और वो जनरली इस वजह से वो चुप हो जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में समझने की ज़रूरत है तो शायद मेंटल हेल्थ है, क्योंकि उसमें वो एक दिमागी है जो आपकी ज़िंदगी को संचालित करता है। जो आपको जो भी रास्ता आप चुनते हैं सब में दिमाग ही काम करता है, और जब दिमाग ही आपके साथ खेल खेलने लगे तो वो बहुत ही मुश्किल वक्त होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और शायद मतलब अच्छी बात ये है कि हम उसके बारे में ज़िक्र करना शुरू कर दिया है। हमने उसको एक समझने की कोशिश शुरू की है। जर्नी अभी बहुत बड़ी है, लेकिन एटलीस्ट मुझे जो लगता है कि भले एक ट्रेजिक एंड हुआ और बहुत ही सैड एंड हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये शायद हमें उस सपने से उठाएगा कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जो सुशांत के साथ हुआ वो शायद किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत से लोग अनभिज्ञ रहते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि सब नज़रअंदाज करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसे नज़रअंदाज ना करें। मेरा तो यही कहना, और चूँकि इस फ़ील्ड में मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ज़िक्र इसलिए होता है क्योंकि इतने उतार-चढ़ाव होते हैं और इतने ड्रास्टिक होते हैं कि आप रातों-रात सुपरस्टार हो गए, रातों-रात लोग आपको हाथ-पैर लोकने लगे। तो ये चीज़ थोड़ा एक्सेप्ट कर पाना, एब्जॉर्ब कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी माँ इंसान के लिए, और रातों रात वो छिन भी जाता है। सडनली आप नोबडी हो जाते हैं, लोग आपको देख के भी लोग आपसे नज़र चुराने लगते हैं। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है जो आपको समझ में नहीं आता है कि भाई वो सच था या ये सच है। और ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंसेस इन्वॉल्व है, एक पब्लिक डोमेन में है आपका जो भी काम है, और ये किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए है। लेकिन चूंकि फिल्म हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा रिलेटेबल है और ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, इसलिए ऑडियंस जो है वो आपको एक ही पल में चढ़ा देती है और एक ही पल में गिरा देती है। तो ये मेंटल स्टेट हासिल कर पाना कि वो डिटैचमेंट ला पाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी सब फील्ड में ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हर आदमी को लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि वो पोएट भी है
और वो लिख भी सकता है और वो एक्टिंग भी कर सकता है, बस मौका नहीं मिल रहा या जो भी वजह रही थी। तो ओपिनियन तो उनका होता है, बस जो बहुत रूथलेस भी होता है एट टाइम्स, और कभी-कभी इतना ओवरवेलमिंग भी होता है कि आप दोनों ही केसेस एक्सट्रीम होते हैं। हमें एज अ प्रोफेशनल जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो एक सेंटिमेंट के तहत कह रहे हैं, और शायद ना मैं उतना अच्छा हूँ अपने काम में, ना ही उतना बुरा हूँ। जिस दिन आप वो एक महीन सी लकीर होती है, वेरी थिन लाइन, जो हम अगर समझ जाएं तो वी आर बैलेंस्ड, और अगर हम नहीं समझे तो फिर वो मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम होते तो सेंसिटिव ही हैं। आफ्टर ऑल कोई भी जो भी आर्ट राइट फॉर्म से रिलेटेड है वो होता बहुत सेंसिटिव इंडिविजुअल है, तो राइट इसलिए वो चीज़ें अफेक्ट भी ज़्यादा राइट करती राइट राइट हैं। राइट श्वेता, मीन्स जिस तरीके से आपने पूरी इंडस्ट्री के बारे में और वहाँ की जो लाइफ है उसको हमारे सामने रखा है, बिल्कुल आई रियली लाइक टू थैंक यू कि इट वाज रियली क्रिस्प एंड वेरी वेल articulated by you. And one thing I also like to share with you that you talked about mental health, and there is a silo in the society, and the people are scared of coming out of the closet with their mental Correct. problem. Trust me, when we started this podcast, the whole agenda was that because this lockdown and the pandemic thing when Right. happened, मुझे खुद फील हो रहा था कि I am in some kind of in mental stress, और इसी को लेके मैंने सोचा कि well, let's start doing something, let's start with a podcast and let's bring together stories of people from different fields, different places, and let's talk about this mental health very openly, and how we can deal with it. Thank you so much once again, And Shweta. thank you so much for starting this. I'm really thankful to you that you have at least started something on this front. That's really commendable. Thank you so much, Shweta. Shweta, before we wrap up, I want to ask you one Right. last question. I know you, Shweta, you come from a small town in Jharkhand, and today you made it big in the Right. industry. So, what advice you can give to our listener who inspire to be part of this amazing industry, जहाँ पर रोज कुछ लोग के सपने पूरे हो जाते हैं और कुछ लोग मुंबई की धूल में खो जाते हैं? इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आप मुंबई आते हैं, मैं इस बात से शुरू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो हाँ हाँ. उस शहर के नेचर से बहुत मिलता जुलता है ये इंडस्ट्री का भी खेल। Okay. जब भी आप आते हैं तो Okay. मुंबई एज ए शहर, जैसे समुद्र का नेचर होता है कि आप जब उसमें कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ पहले बाहर फेंक देती है, Right. मतलब वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता आपको। Right. और फिर लेकिन Okay. सेकेंड टाइम पे वो धीरे धीरे फिर वो आपको एब्जॉर्ब करता है और फिर वो आपको एक्सेप्ट करता है। तो यही बात मुंबई के साथ भी है, Right. और हमारी इंडस्ट्री में भी है Right. कि आप जब आप आते हैं तो कोई आपको तुरंत से एक्सेप्ट नहीं करता है, और करे भी क्यों, मतलब तुरंत आप पे Okay. विश्वास क्यों करे, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए नहीं। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना Mm-hmm. कि एक ट्रस्ट तुरंत नहीं डेवलप होता, वो Right. एक दिन में नहीं डेवलप होता है। और ये इंडस्ट्री Right. में ट्रस्ट बहुत मैटर करता Right. है, कंफर्ट बहुत मैटर करता है जब भी आप काम कर Right. रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि Right. जब आप आए तो ये सोच के आए कि मुझे वो ट्रस्ट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोच गलत Absolutely. है कि मैं आया हूँ तो लोग मेरे लिए Mm-hmm. प्लेट तैयार रखें Mm-hmm. और मुझे मालों से मेरा स्वागत Right. करें, ऐसा नहीं होता है। आपको उस स्ट्रगल के Right. लिए तैयार रहना होगा, Right. और कहीं ना कहीं जो भी Mm-hmm. रिजेक्शन हो रहा है उसमें पॉजिटिव्स ढूंढना पड़ेगा कि कोई पागल नहीं है कि आपको क्यों मना कर रहा है। Mm-hmm. और जो हम कह Right. रहे हैं कि इंडस्ट्री में की जो फैमिली के लोग हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के हैं उनको मौका जल्दी मिलता है, तो मैं यही कहूँगी कि वो Mm-hmm. उनको भी मौका नहीं मिलता है जल्दी। वो भी एक सर्टेन लेवल को Mm-hmm. अक्वायर करते हैं आने के पहले, उनको उस तरीके से ग्रूम किया जाता है, ये शायद उनका एडवांटेज है जो एज Okay. एन आउटसाइडर आपके पास नहीं होता है। Right. लेकिन अदरवाइज उनको भी Right. ट्रस्ट जीतना पड़ता है, और सबसे बड़ा ट्रस्ट तो ऑडियंस है। अगर ऑडियंस आपको फेल कर दी तो कोई भी फेल कर देगा। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जहाँ Right. भी मौका मिले आप अपना ट्रस्ट बनाइए, अपने स्किल पे मेहनत कीजिए, जो भी आपका टैलेंट, Right. वो चाहे राइटिंग हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक Right. हो, डांस हो, हर फील्ड में। Mm-hmm. और हर फील्ड में Mm-hmm. उतनी ही Right. कंपटीशन है जिसको आपको पॉजिटिवली ही लेना Right. होगा अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं।
Right. नहीं तो क्योंकि ये कंपटीशन Right. से आप बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में हैं या आप एक Right. एचआर इंडस्ट्री में हैं तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन वहाँ भी है और इस कंपटीशन हम्म से आप हम्म बच नहीं सकते। Right. तो इसलिए उस Right. कंपटीशन के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को और बेहतर कीजिए और एक ट्रस्ट Right. डेवलप करना पड़ेगा। Right. ये मानना पड़ेगा कि शायद Right. सामने वाला, क्योंकि कोई भी अपना प्रोजेक्ट नहीं खराब करना चाहता, सबसे बड़ी बात ये है। इतने सारे स्टेक्स होते हैं, इतने पैसे लगे होते हैं Right. कि कोई बुरा चीज़ नहीं बनाना चाहता है। हम्म तो इसलिए वो हर चीज़ से बहुत Right. केयरफुल होता है, कॉशियस होता है। तो आप अगर उस Right. कॉशन को उसका दूर Right. करते हैं, उसमें उसके अंदर एक केयरफ्री हम्म एटीट्यूड ला पाते हैं अपने स्किल्स से, तो आप सक्सेसफुल Right. हो सकते हैं। Right. मैं खुद इसकी मिसाल हूँ। मैं आई एम अ नोबडी True. एंड True. एज यू सेड आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल Right. टाउन, लेकिन मुझे मौका मिला और लोगों ने Right. मेरे पर विश्वास किया तो ही Right. मैं सरवाइव कर पाई। तो मैं बस यही Right. कहूँगी कि पॉजिटिव होना बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को पर्सनली नहीं लेने की Right. ज़रूरत है। बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगा है, Right. तो आप उसको जिक्र कर लो, Right. गुस्से में निकाल दो, दोस्तों से Right. बात कर लो, किसी भी तरीके से उसको वेंट आउट करो। Right. फ्रस्ट्रेशन हर फील्ड में है, यहाँ भी है, Right. लेकिन उसको वही जिंदगी Right. का सच भी नहीं है। तो इसलिए आप अगर आगे बढ़ना Right. है तो चीज़ों को पर्सनली लेना छोड़ दो और हम्म पॉजिटिवली सोचना शुरू करो। Right. बस बिना पॉजिटिव रहे तो दुनिया में कुछ नहीं कर Great. सकते। तो इसीलिए Right. चाहे वो ये Great. कोई Great. इंडस्ट्री हो या ये इंडस्ट्री हो, तो इस इंडस्ट्री के लिए भी मैं यही कहूँगी Right. कि Right. पॉजिटिव रहना चाहिए, Right. अपने काम अपने क्राफ्ट के प्रति Right. रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एक बार आप अपनी रिस्पॉन्सिबल Right. साइड को शो करेंगे तो ऑब्वियसली आप पे ट्रस्ट आएगा और ट्रस्ट आएगा तो काम आएगा। चीज़ें स्लो होंगी Right. लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होता है। Right. सपने सच होते हैं। Right. Wonderful. Great, Shweta. Thank you so much for sharing this. I'm sure not just people who inspire to be part of film or TV industry. Everybody, I'm sure, who are listening to this podcast right now, I'm sure they must be writing it down that if they want to be successful, उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि they don't have to stick with negativity, and as soon as they can, they should move to positive side of it, and also focus on the craft, their talent, their skills. Shweta, you are such a role model for a lot of people. If you have made it, I'm sure, people listening right now are inspiring to be in your position and want to be, successful like you. I really thank you once again for taking out time to doing this podcast. I know you are very busy, and again, really, really thank you from bottom of my heart. Thank you so much, Shweta, for your time today. One last message if you want to share with our listeners. So I would just say कि in these troubled times we should be more responsible towards each other. Right. We should be more caring. Right. We should be more understanding and accepting of each other is Right. all I can say. And this doesn't Great. mean that you neglect your own self. You need to take care of your own self more Right. than anyone else, so that you are Right. capable of taking Absolutely. care of others. So that's all I can say right now. Thank you so much, Shweta, and thank you so much to all the listeners for listening in today. I'll be back with another story of life in lockdown.